Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are conducting lab number 4 of web engineering. The topic of today's lab is JavaScript loops and functions. In the third lab, we have introduced the JavaScript, its basic concepts, if and else, and other concepts. Now, in this lab, we will cover JavaScript loops and create functions. So JavaScript provides several types of loops to execute a block of code repeatedly until a specific condition is met. In other programming languages, you have also studied about the loops, for loops, while loops, do while loops. So JavaScript also consists of these loops. For loop use when you know the number of times you want the loop to run. In the previous lab, we have seen that we use the document.write, and if we have 4 variables and we want to print the result of these 4 variables, we have to write document.write and variable 1, document.write variable 2, variable 3 many times. But if we want to save our time and if we want to do smart programming, so we can use loops. These loops help us to make the program presentable and also save the time typing various lines. Okay, so this is the code of for loop. For loop, let I is equals to 0, I less than 5, I plus plus. Mostly it used when we use the array. When we initialize values in an array, so instead of writing array index 0, array index 1, array index 1, 2, 3, 4, for example, we have 100 indexes of one array, and we want to print the result of these 100 arrays. So instead of writing array 0 till arrow 100, array 0 till array 100, we use for loop and initialize the length of the variable here. I is equals to 0 till I is equals to less than 100. It will help us to print the result of whole array. And then we have a while loop executes a block of code as long as the specified condition remains true. The condition is checked before each iteration. I is equals to 0, I less than 5, I plus plus. इसके अंदर और for loop के अंदर क्या difference होता है? For loop के अंदर हम शुरू से ही initialization और end value बता देते हैं और increment बता देते हैं कि 1 का increment करना है, 2 का increment करना है, इस हिसाब से. और while loop के अंदर क्या होता है? While loop के अंदर आप initialization condition बताते एंड उसकी जो लिमिट होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव एरे ऑफ 100 इंडेक्स, यू हैव एरे ऑफ 5 index, so you write it here, and after writing your code you will tell that what is that I plus plus means increment of 1. If you write here I plus 2, it means increment of 2. Then we have do while loop, a variant of the while loop that executes the code block once before checking the condition. ये पहले कंडीशन चेक करता है कि जो आपने कंडीशन दी है क्या वो कंडीशन ट्रू है, क्या वो कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो लूप आगे रन होता है, अदरवाइज नहीं रन होता. लेट आई इज इक्वल्स टू 0, डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. एक टाइम ये कोड रन होता है, एक टाइम जो भी मैसेज होगा कुछ भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर देखेगा आई लेस देन 5 है तो दोबारा रन होगा वरना नहीं होगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल लूप आपका इतनी दफा रन हो चुका है कि आई की वैल्यू 6 तक पहुंच गई, आई की वैल्यू 7 तक पहुंच गई, तो वो तो हमको नहीं करना. हमारे पास तो इंडेक्स जो है वो 5 तक ही है. या ये भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरा एरे प्रिंट करवाना हो सकता है आपको हाफ एरे प्रिंट करवाना हो, या एरे की शुरू की सिर्फ 4 इंडेक्स की वैल्यूज प्रिंट करवानी है जबकि एरे 50 नंबर्स का है, तो आपको जितनी वैल्यू जहां तक प्रिंट करवानी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर आपको ये नहीं पता कि एरे टोटल कितनी लेंथ का है तो आप एरे डॉट लेंथ लिख सकते हैं, तो एरे की जितनी लेंथ होगी उतना या उससे एक कम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा.
कंट्रोलिंग लूप के फ्लो को हम कैसे रोकते हैं? ब्रेक की टर्मिनेशन आती है, यानी आपने करा ब्रेक करा तो आप लूप से बाहर आ जाए। टर्मिनेट्स द एंटायर लूप इमीडिएटली एंड ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। जिस स्टेटमेंट के बाद लूप स्टार्ट हुआ था, अगर आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक की स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि भाई ये कंडीशन आ जाए तो ये लूप ब्रेक हो जाए, और फिर वो वापस कंपाइलर उसी लाइन ऑफ कोड पे चला जाएगा जहां से loop start हुआ था। Continue terminates the current iteration of the loop and continue execution with the next iteration. Often this is the case when working with arrays. ये देखें जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप कार, एक एरे है कार का 0 से लेके 5 तक, उसको अलग अलग प्रिंट करवा के उसकी इंडेक्स प्रिंट करना है, या फिर स्मार्ट प्रोग्रामिंग करें, फॉर लिखें वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन कार्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। The for loop is often the tool you will use when you want to create a loop. The for loop has the following syntax, वही जो अभी हमने देखा है वही सिंटेक्स यहाँ पर आ गया और ये इस तरह से प्रिंट हो गया। और लूप अगर आपको उल्टा प्रिंट करनी है, इंडेक्स की वैल्यू पहले आखिरी वाली की प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 5 और आई ग्रेटर देन 0। तो उससे क्या होगा कि वैल्यूज जो है रिवर्स में प्रिंट होकर आ जाएंगे। नॉर्मली यू विल यूज स्टेटमेंट 1। ये आपका फॉर लूप आ गया, मैं भी कोड रन करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 किसको बोला है? स्टेटमेंट 1 इसको बोला गया है। आई टू यहाँ पे इन्होंने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया था, फिर ठीक है। स्टेटमेंट ये लेंथ का वेरिएबल के अंदर लिख दिया कार्स डॉट लेंथ। मैंने भी बताया था ना कि अगर आपको नहीं पता कि आपके एरे की इंडेक्स लेंथ कितनी है, तो आप एरे का जो भी नाम है वो लिखें, डॉट लेंथ लिखें, तो लेंथ इसका बिल्ट इन फंक्शन है, ये खुद यहाँ पे लेंथ की कंसिडर कर लेगा। और जरूरी नहीं है आप आई प्लस प्लस से इंक्रीज करें, आप चाहते हैं एक वैल्यू प्रिंट हो उसके बाद 2 वैल्यू से गैप आए, 3 वैल्यू से गैप आए, तो आप आई प्लस 2 लिख दें, आई प्लस 3 लिख दें, जैसे यहाँ पे आई प्लस 15 लिखा हुआ है इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक वेरिएबल पर्सन है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक एरे पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था कि एक ही पर्सन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। एरे आता है स्क्वायर ब्रैकेट में और ऑब्जेक्ट आता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज यहाँ पे मेंशन कर दी, फॉर लूप यूज किया। अब इसमें इंडेक्सेस नहीं है क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, एक्स इन पर्सन, यानी कि हमने एक वेरिएबल ले लिया, इन का कीवर्ड यूज किया और पर्सन हमारे इस वाले वेरिएबल का नाम है, इसमें डाटा सेव है। फिर हमने लिखा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट प्लस पर्सन और ये आ गया एक्स। तो ये आपके पास एज इट इज इसकी वैल्यूज जो भी हैं 1 बाय 1 वो प्रिंट होकर आ जाएंगी। इसको कहते हैं फॉर इन लूप। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाता है। देन वी हैव व्हाइल लूप। वाइल लूप देखेगा कंडीशन को कि जो है आई लेस देन 5 है। हाँ, अगर आई लेस देन 5 है तो क्या करो, नंबर को प्रिंट कर दो, इस तरह से मैसेज प्रिंट हो गया। फिर स्टेटमेंट लूप के अंदर ही हमने आई प्लस प्लस किया, एक इंक्रीमेंट हो गया और आई की पहले पहले 0 इंडेक्स प्रिंट हुई थी, फिर 1 फिर 2, इस तरह करते करते जब आई की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी फिर ये लूप रन नहीं होगा। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे दी गई होती है, तो इसलिए एक दफा पहले ये रन हो जाता है और उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो जितना नंबर आपको प्ले करवाना है उससे एक नंबर कम की आप कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि एक नंबर ज्यादा वो खुद ही प्रिंट कर देगा। ये डू वाइल लूप आ गया। इसके लिखने का तरीका क्या है, डू लिखा और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपने ये सारा अपना जो भी कंटेंट है वो लिखा, क्लोज करके वाइल की कंडीशन अपेयर कर कंपेयर करवा दी। डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज इन द कंडीशन, अदरवाइज द लूप विल नेवर एंड।
ने बोला आई प्लस प्लस करना मत भूलें, वरना तो आपका लूप वो आई की वैल्यू वही रहेगी और आपका लूप चलता रहेगा, हर दफा आई की वैल्यू 0 0 0 0 आती रहेगी और वो वही वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। फॉर एंड वाइल लूप के अंदर क्या डिफरेंस है? इफ यू हैव रीड द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द फॉर लूप, you will discover that a while loop is much same as for loop with statement 1 and statement 3 omitted. The loop in this example uses a for loop to display all the values in the कार्स एरे। उन्होंने क्या करा, एक कार्स का, अब वो था हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो थी आपके पास ऑब्जेक्ट की। नाउ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ एरे। कार्स के अंदर आपने वैल्यूज सेव करवाई, आई इज इक्वल टू 0 फॉर कार्स आई, यहाँ पे कार्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये इस तरीके से आपका ये चेंज। फॉर लूप के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है। अगर हम अलग से लिखते डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो हमें कितनी दफा 1 2 3 4 टाइम्स लिखना पड़ता, कार्स इज इक्वल्स टू 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स तरह से। लेकिन हमने क्या किया, फॉर लूप रन किया, कार की यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 0 1 2 3 खुद ही चेंज होती रहेगी। आई पहले यहाँ इनिशियलाइज करवा दिया था, इसलिए आई यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाया, आई प्लस प्लस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देने के बजाय। मतलब फॉर लूप को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप जिस तरह से बनाते हैं, पहले ना ये इनिशियलाइज करें ना यहाँ पे ये इनिशियलाइज करें, सब कुछ यहाँ ब्रैकेट में इनिशियलाइज करें। सेम वही एग्जाम्पल उन्होंने वाइल लूप से दिए, ऊपर यही बताया था फॉर लूप और वाइल लूप मिलते जुलते ही हैं। तो इस तरह से लिखा और उसके अंदर कंडीशन फिर चेक करी, रन हो रहा है, रन हो गया। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कब यूज करते हैं? यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्रेक स्टेटमेंट यूज इन एन, अच्छा इस जब हम वो यूज करते हैं ना स्विच केस वगैरह, तो उसके अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस 1 के ऊपर हमें अपनी कंडीशन मीट कर दी तो हम वहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक। ये ना हो कि अब केस 2 केस 3 सबको चेक करता हुआ जाए, चेक करके कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन चेक करने में कंपाइलर का टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर क्या है कि वो वहां पे ब्रेक करे और एंड पे आ जाए। इसी तरह से अगर हम फॉर लूप के अंदर इफ एंड एल्स लगा रहे हैं, या फॉर लूप के अंदर हम यही वाली कंडीशन लगा रहे हैं केस वाली, तो क्या हो कि अगर उसको कंडीशन मीट हो गई है तो बस यहाँ पे वो ब्रेक कर ले। जो भी मैसेज वगैरह प्रिंट करवाने हैं वो आप करवा सकते हैं। तो खैर लिखने का उन्होंने तरीका बताया है, और ये मैसेज उन्होंने बोला प्रिंट होकर आ जाए। अच्छा, अगर आपकी इफ स्टेटमेंट जो आप बना रहे हैं उस इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं है, खाली आपने ब्रेक ही लिखना है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जरूरी नहीं है डालें। ये सिर्फ एक ही लाइन का कोड था तो बस एक ही लाइन में लिख के इसको आगे बढ़ गए। कंटिन्यूस स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइट्रेशन इन द लूप इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स एंड कंटिन्यूस विद द नेक्स्ट आइट्रेशन इन द लूप। जैसे कि ये देखें, लिखा आई थ्रू कंटिन्यू, आपकी एक आइट्रेशन मीट हो गई, अब आप चाहते हैं दूसरी आइट्रेशन पे चले जाओ, तो आपने कर दिया कंटिन्यू। यहाँ पे ब्रेक नहीं करा, कोड को खत्म करने को नहीं बोला, बल्कि इसको बोला है कोड को आगे की तरफ रन हो जाओ। यानी कि आई इक्वल्स टू 3 था पहले, अब जो है वापस फॉर लूप के ऊपर जाओ और इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा के आगे रन करना है। अच्छा, एक है हमारे पास लाइन ब्रेक। अगर हम कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, चाहे अलर्ट विंडो में करवा रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट राइट में करवा रहे हैं, और हम वो मैसेज एक लाइन में लिख रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट लाइंस में आए लाइन ब्रेक करने के लिए, तो हम ये यूज करते हैं \n। अब ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक दूसरा टॉपिक है, सो वी शुड ट्राई सम एग्जांपल्स ऑफ लूप्स। ठीक है, नाउ वी मूव टूवर्ड्स W3 schools. Loops can execute a block of code a number of times. ये देख लेते हैं, ये हेडिंग 1 आ गई, ये हेडिंग 2 आ गई। यू नो द डिफरेंस वेरी वेल ऑफ H1 and H2. PID equals to demo script. Because we are using the JavaScript, so we have to mention the script tag. Constant cars is equals to, and these are the names of the variables. Let text is equals to, वेरिएबल कंसिडर किया हमने, उसको एम्प्टी रखा क्योंकि उस वेरिएबल के अंदर हमें ये वाली लूप की वैल्यूज स्टोर करवानी थी। फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है, कार्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस।
फिर टेक्स्ट प्लस इजिकल्स टू, प्लस का ये जो ऑपरेटर है प्लस इजिकल्स टू, ये क्या काम करता है, एक वैल्यू आएगी, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू इसके अंदर ऐड होती रहेगी, इसके अंदर सेव होती रहेगी। तो कार्स आई प्लस बी आर, यानी पहले कार आई, कार जीरो आया, ठीक है, यहाँ पे जीरो की वैल्यू आई, सिंटेक्स जीरो के ऊपर क्या लिखा हुआ था, BMW, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, फिर लाइन ब्रेक हो, फिर सेकेंड, इस तरह से चलता है। जब ये आपका स्क्रिप्ट का टैग एंड हो गया तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और ये स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये पहले लिख दिया, जो भी टेक्स्ट का वेरिएबल है अब वो इस तरह से प्रिंट करवाए। इसके अंदर ये होता है कि हम पी के अंदर कोई भी आईडी क्रिएट करते, कोई भी नाम रख देते हैं आईडी का, और जब हमें बाकी चीजें प्रिंट करवानी होती है वो इस तरह से गेट एलिमेंट बाय आईडी, जावास्क्रिप्ट जो है वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से कंटेंट लेता है और फिर उसको प्रिंट करवाता है। इसमें क्या मसला आ गया, ये रन, ये तो रन हो गया लेकिन ब्राउजर क्लोज होने पे जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल रन होगी, देखते हैं मजीद काम कर रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा जी, नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द व्हाइल लूप। While loops throw a block of code as long as the specified condition is true. मैंने एग्जिट पेज कर दिया गलती से। अच्छा जी, I less than 10, इस एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट की ब्रेक स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। लैब 4 के पार्ट में आज हम इतना ही रखेंगे, फंक्शंस वाले जो है वो देखने, इसको हम नेक्स्ट लैब में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये लोड हो रहा है तब हम इसके टास्क देखते हैं। तो देखिए अभी हमने हाफ लैब कवर किया, जब तक इसके आप हाफ टास्क बनाए। वैसे तो ये जो फंक्शन वगैरह है वो हम पिछले उसमें भी कवर कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं देखती हूँ अगर इस वीडियो में फंक्शंस भी कवर हुए तो बता दूंगी। लेकिन लूप के हवाले से आपको जो कोड दिया है वो क्या है, स्कूल वेबसाइट अलाउज स्टूडेंट्स टू व्यू मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यूजिंग अ लूप दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर। आपको एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कोड लिखना है और यूजर से आपने इनपुट लेना है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा 5, आप मेंशन कर दें कि आप 1 से लेके 10 कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, वैसे मेंशन कर दें 1 से 10 या 1 से 20, और यूजर ने फॉर एग्जाम्पल 18 प्रिंट किया, तो आपके पास 18 का टेबल लिखा हुआ आ जाए, इसका आउटपुट का डिस्प्ले इस तरह से लिखा हुआ है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप के अंदर एक वैल्यू फिक्स होगी और ये वैल्यू जो है ये वेरिएबल होगी। ये जिस तरह I++ से जो वैल्यू चेंज होती है ये उससे वैल्यू चेंज होगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर आप इस तरह का एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे, और जो कि उसके अंदर बस एक इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी, और ये वैल्यूज आप, ये वाली वैल्यू आप फिक्स रखेंगे 5 मल्टीप्लाई वाली, या यूजर जो भी इंटर करे वो जिस वेरिएबल में सेव हुआ है उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यूजर से जब आप डाटा लेंगे वो किसी वेरिएबल के अंदर
स्टोर होगा। तो आप टास्क नंबर 3 कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। देन अ वेब पेज हैज 5 इमेजेस स्टोर्ड इन एन एरे। हमने इमेज लेना सीखा था कि हम किस तरह से वेब पेज के ऊपर अपने इमेज स्टोर करते हैं, तो आप उसी मेथड से एक इमेज स्टोर करवाएं, 5 इमेजेस स्टोर करवाएं, लेकिन वेरिएबल के बजाय पहले आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे, अब आप एरे के अंदर इमेज स्टोर करवाएं और उसकी इंडेक्स 5 हो। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है, अब जाहिर है घर से क्लास होगी तो ये चीजें आपको थोड़ी सी बेयर करनी पड़ेंगी। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम यूजिंग अ लूप that displays all images on the web page with width of 150 पिक्सल। फिर आपने क्या करना है कि एक कोड लिख लें जो कि लूप यूज करे, और लूप यूज करते हुए आपकी 5 इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाए। हर इमेजेस की जो विड्थ है वो 150 पिक्सल तक हो। ठीक। आई होप इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक दीज टास्क। चलें हम फंक्शंस के पार्ट को भी कवर कर लेते हैं, ताकि बजाय इसके कि सेपरेट सेपरेट वीडियोस हो, हम एक ही वीडियो में सब चीजें कवर कर लें। ये तो फिलहाल ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड हो गई है। अभी हम स्क्रीन पर ही थे और हम मेरे ख्याल से आपके पास जो मैनुअल का मैं बता रही थी वो स्क्रीन नहीं आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैनुअल तो आपको मिलेगा, तो आप वो टास्क दोबारा देख सकते हैं। ब्रेक की स्टेटमेंट वाला एक कोड देख लेते हैं हम। जब तक ये लोड हो रहा है, जब तक मैं आपको फंक्शंस बता दूं। फंक्शन हमने मेरे ख्याल से लैब नंबर 3 के अंदर भी कोई कवर किए हैं। फंक्शन स्क्रिप्ट के टैग के अंदर फंक्शन बनेगा, ठीक है। माय फंक्शन अलर्ट विंडो आप खोल रहे हैं, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए, स्क्रिप्ट हेड क्लोज बॉडी, और फिर एक बटन बनाए ऑन क्लिक, और उस बटन पे जब आप ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो माय फंक्शंस पे चला जाए। जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटेक्स, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट आता है, प्रोसीड बाय द फंक्शन कीवर्ड, ये फंक्शन का कीवर्ड होता है और ये फंक्शन का नेम होता है। The code inside the function will be executed when someone calls the function. फिर हम अपने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 आपने लिखे, द वेरिएबल्स एंड द आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी इन द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। द फर्स्ट वेरिएबल इज गिवन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो आप पास करेंगे वो सेकंड के अंदर जाएगा, और ये दोनों एक साथ लिखे हुए, तो इसका मतलब आप जब वैल्यू पास करवाएंगे तो आप भी दोनों वैल्यूज एक साथ पास करवाएंगे। हियर इज द कोड। एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर नेम और जॉब ये दोनों हम सेंड करेंगे मेन में से, और जो है फिर लिखा हुआ आ जाए, अलर्ट विंडो ओपन हो जाए, वेलकम, और उसका नेम आ जाए, जॉब आ जाए। हो सकता है ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये आप रन टाइम पे भी ले सकते हैं, और ये आप किसी वेरिएबल के अंदर सेव भी करवा सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या है। हैरी, इसके अंदर जो है इन्होंने यहीं रन टाइम पे डाटा नहीं लिया, बल्कि जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहीं से डाटा सेंड कर दिया, हैरी पॉटर विजिट। आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि रन टाइम पे जो है वैल्यू ली जाए पहले यूजर से, वो दोनों वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाई जाए, फिर जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उन दोनों वेरिएबल्स का नाम इसके अंदर लिख दीजिए। यार ब्राउजर तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं, फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू। ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास सिंपल फंक्शन है, इसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। उस वेरिएबल आप कोई वर्किंग भी कर सकते हैं, आप कोई प्लस माइनस का फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, और नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली रिटर्न एक्स करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी रिटर्न में। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास प्रिंट हुई भी आएगी। तो और उसको कैसे कॉल करेंगे, रिटर्न वैल्यू
कॉलन वेरिएबल, अब आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, ऐसे करके, और इक्वल्स टू माई फंक्शन कर दिया, तो आपके पास ये रिटर्न हो जाए। ये दोबारा देख लें कि आपने ये फंक्शन का वेरी बनाया है, फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर की है, उस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, तो होगा क्या, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उस फंक्शन की जगह वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इस वेरिएबल का आपने ये नाम रखा, इक्वल्स टू के बाद फंक्शन का नाम आ गया। द वेरिएबल होल्ड्स द वैल्यू 5 विच इज व्हाट द फंक्शन माय फंक्शन, ठीक है। कॉल करने का तरीका क्या होगा दूसरा, यू कैन ऑल्सो यूज द रिटर्न वैल्यू विदाउट स्टोरिंग इट एज अ वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे रिटर्न वैल्यू को, तो डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन एन एचटीएमएल, और इस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या था, एक फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट पास किया था ए और बी, और रिटर्न में हमने क्या करा था ए इंटू बी, यानी जो आपके पास दो एलिमेंट हैं इनको मल्टीप्लाई करो। इसके भी मेथड ये है कि आप इस तरह से कर लें कि वेरिएबल एक्स आपने डिक्लेयर किया, देन यू मेंशन एक्स इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और फिर रिटर्न के अंदर आप एक्स को रिटर्न करना है। लेकिन ख्याल रखिएगा केस सेंसिटिव है, मैंने यहाँ एक्स स्मॉल लिखा है और यहाँ एक्स कैपिटल लिख दिया, तो मैं रन करूंगी तो इसके अंदर एरर है, तो इसको सही से लिखना है। और फिर डॉट ये इस तरह से करके माय फंक्शन कॉल करके यहाँ से आपने आर्ग्यूमेंट्स ऐसे पास करवा दिए। बस ये हमारे फंक्शंस थे, ठीक है। इसका क्या है, राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट इनपुट्स एज फ्रॉम यूजर्स एंड इनपुट लेना है, ठीक है। आप स्क्रिप्ट टैग देख लीजिएगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। फ्रॉम यूजर कन्वर्ट एज इनटू डेज, तो तरीका क्या होगा, एक वेरिएबल लेना है, यूजर से लेना है एज, फिर जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर आपने एज पास करवानी है। एज पास हो गई, फंक्शन के अंदर आपने फॉर्मूला लगाना है कि एज को डेज में कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉय डिटेल्स। तो इसके अंदर क्या है, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, और जो है वो फंक्शन के अंदर क्रिएट होगा, जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो वो एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको लिख के दे दें। तो ठीक है, कोशिश करें ये टास्क जो है आप 2-3 दिन में कंप्लीट कर लें, आगे फिर जो है आपको आसानी होगी नेक्स्ट स्टेप्स क्योंकि हमें कवर करनी है। ओके, कोई भी आपका क्वेश्चन हो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप or by commenting on the YouTube video. So it is very easy lab. Try it and complete your task. Thank you. Allah Hafiz.